Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. Thanks for the overwhelming success that you people have given me for the most expected series. And here I am once again with 10 short questions from novel and drama that you are likely to see in your upcoming Haryana Public Service Commission subject knowledge exam. तो लास्ट 10 डेज बचे हैं, स्ट्रैटेजी हम ऑलरेडी अपलोड कर देंगे और साथ ही एक गुड न्यूज मैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने वाली हूँ. Once we are done with this video and the last 10 days strategy video, we are coming live once again. We will be coming live once again. Guess what? कौन सी यूनिट के लिए? रिसर्च यूनिट के लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड यूनिट है. टू हेल्प यू पीपल, आई हैव फाइनली मेड द ट्रू ब्लू कंटेंट जो आपको हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्रैक करने में और इस यूनिट को क्रैम करने में. सो विदाउट मच अडू, लेट अस स्टार्ट आवर लास्ट most expected questions from the unit novel and drama. 10 questions short पब्लिक सर्विस कमीशन के PYQs हैं, MDU के PYQs हैं, KU के PYQs हैं. So they are most likely to be there. These are not the only ones, but they will be there in your exam. So let us start. See, I will be drifting between this and that screen. So the very first question is Raymond William questions the identification of tests with a peasantry destroyed by industrialization. Do you agree with this point of view? Or role of chance and fate in shaping Tess' life, discuss in detail on the basis of text. Mind you, this question, role of chance and fate, in itself very much important. When I was a student in MDU, Tess was prescribed in our syllabus as one of the most important crucial texts written by Thomas Hardy. फेट एंड चांस का रोल, पेसिमिज्म का रोल इसमें बहुत ज्यादा है. और बात अगर पेजेंट्री की आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की आती है, तो यस, Tess was affected by that. She was called a pure woman. At the same time, she was not a pure woman. She was literally a toy in the hands of fate and chance. तो इस क्वेश्चन को प्लीज से प्लीज करके जाइएगा, भूलिएगा मत. यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट भी आता है और फेट एंड चांस 100% चांसेस है. टेस्ट की बात हो और फेट और चांस की बात ना हो और पेसिमिज्म की बात ना हो, फाइनली टेस्ट के साथ जो अपना प्ले था गॉड ने एंड कर दिया लास्ट में. लेकिन द प्ले, द जर्नी ऑफ टेस्ट's लाइफ हैड बीन रियली वेरी चैलेंजिंग. सो इन दैट टोन, इन दैट वेरी पेसिमिस्टिक टोन ऑफ द विक्टोरियन आइलैंड, Victorian England, you have to mix and match your answer, combining fate and chance, combining industrialization and the class consciousness philosophy here, where Tess belongs to the lower strata of society and how she is made to change her surname and how she connects with the Deep D'Urbervilles family. So the next question is, even I myself enjoy such sort of reading. Second is write a short note on stream of consciousness novels. अब पहली बात तो यहाँ पर एक चीज मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगी, जो एंड ऑफ दिस वीडियो में भी मुझे कहना था. भाई, नॉवल, ड्रामा, पोएट्री, कुछ भी पढ़ रहे हो, लिटरेरी टर्म्स को मत भूलिएगा. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है, किसने यूज की है, कौन कौन से टेक्स्ट में हमें मिलती है. अब हमारे ही सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमारे पास हेनरी जेम्स भी है, जेम्स जॉयस भी है, डीएच लॉरेंस भी है, वर्जीनिया वुल्फ भी है. सो दीज आर बेसिकली, वर्जीनिया वुल्फ तो मियास्ट्रो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की. सो यहाँ पर आपको क्या प्ले करना है? You have to play really very smart. You have to club the major works of the writers जिन्होंने stream of consciousness technique को use किया है. पर उससे पहले बताना है stream of consciousness क्या होता है. I have been saying this in my video over and over. Absurd theater, kitchen sink drama, comedy of manners, stream of consciousness, satire.
मॉक एपिक, मॉक हीरोइक, इन टर्म्स को पढ़े बिना पेपर में मत जाना, मेटाफिजिकल कंसीट, सो दैट विल गिव वेरी मच रियलिस्टिक एंड वेरी फैक्चुअल टच टू योर आंसर। तो यहाँ पर सीधा साधा HPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया है भाई कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स पर ही आप एक नोट लिख दीजिए। आई माई सेल्फ फाउंड दिस क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पली ग्रेशिया of how questions might come. Next question is, what is the central theme of Kantapura? Can it be considered a post-colonial novel? अब पोस्ट कलोनियल की थियरी तो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ करके जा ही रहे हैं, तो वही थियरी को अप्लाई कर देना पोस्ट कलोनियल नॉवल पर, ये बात तो फर्स्ट हो गई। लेकिन आज इस यूट्यूब के मीडियम से मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ 2021 22, 23 एक भी ईयर ऐसा नहीं गया है जब तक कांथापुरा नहीं पूछा गया हो, और एक भी ईयर आज तक ऐसा नहीं है जब MDU के इवन अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कांतापुरा का नॉवल प्रिस्क्राइब्ड है। हमारे BA के स्टूडेंट्स भी कांतापुरा नॉवल को पढ़ते हैं और मूर्ति के कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं। तो ये एक मूर्ति का कैरेक्टर, गांधीगिरी और एक पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट, जरूर से जरूर इस तरीके की रीडिंग का आंसर फ्रेम कर लो। कांतापुरा की प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर कर जानी है। इट इज दैट मच इम्पॉर्टेंट कि हमारे यहाँ BA के बच्चों को भी कांतापुरा नॉवल पूरा टेक्स्ट के साथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, वेरी वेग क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, MDU में पूछा गया है, HPSC में पूछा गया है, शायद KU में भी पूछा गया है। It is truth, universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. A man who has really possessed money, material means, he is in a need of a wife. And wife को क्या चाहिए? एक ऐसा man जिसके पास ये सारे possessions हो। So concept of marriage क्या है Pride and Prejudice में? ये लाइन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग में भी पूछी गई है, नेट में ओवर द इयर्स पूछी गई है। जब नेट का पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव होता था उसमें भी इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस भी बहुत ज्यादा ओवर आस्क्ड क्वेश्चन है, जस्ट लाइक कांतापुरा, तो उसे भी प्रिपेयर कर कर जाना है। सब स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर कर जाना है। मैं क्वेश्चंस वही लेकर के आई हूँ जो बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन MDU में प्रिस्क्राइब्ड है, डिस्टेंस में प्रिस्क्राइब्ड है, रेगुलर में प्रिस्क्राइब्ड है, क्योंकि मुल्क राज आनंद गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री विद दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनटचेबल? अब मेरे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अनटचेबल की समरी लिख करके आ जाएंगे, क्योंकि बखा जो इनके मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो एक अनटचेबल है। हाउ ही हैज टू अनाउंस हिज अराइवल, कोटेशंस बहुत अच्छी हैं। उनकी सिस्टर के साथ क्या होता है, उनके साथ एज अ फैमिली कैसा ट्रीट किया जाता है, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, अनटचेबल एक दलित लिटरेचर का इनिशियल एग्जाम्पल भी है, क्यों ना इस डिटेल को भी मेंशन कर दिया जाए। अगर हम लिटरेरी फिक्शन की बात करते हैं तो अगर हम दलित राइटिंग, क्योंकि दलित लिटरेचर आज का बहुत ही ज्यादा फेमस और रिसर्च्ड फेज है, रिसर्च एरिया है, तो क्यों ना दलित लिटरेचर के वन ऑफ द पायनियर्स की तरह हम इसे दिखाएं कि इसमें हर अंडरटोन मिलती है, हर लेयर मिलती है अनटचेबिलिटी की। जो सोशल इनजस्टिस हो रहा था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या थे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट थे एक लू के प्रोस्पेक्ट थे। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट को भी जरूर से जरूर पढ़ के जाना। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर ड्रामा। अब ड्रामा में आ जाइए, इब्सन का डॉल हाउस मत छोड़कर जाना। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ इब्सन्स अ डॉल हाउस? Nora's character represents the position of women in bourgeoisie society. कमेंट। अब इसका एक भी क्वेश्चन और भी बनता है, डिस्कस द यूज ऑफ इनोवेटिव ड्रामेटिक टेक्निक इन इब्सन्स अ डॉल हाउस। अब यहाँ पर इब्सन का ड्रामा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक रियलिस्टिक ड्रामा है। उस वक्त लिखा गया है ये ड्रामा जब ड्रामा को एज अ जॉनरा ही ज्यादा नहीं प्रेफर किया जाता था, फेवरेबल मोड नहीं थी, लेकिन ड्रामा जब रियलिस्टिक अंडरटोन्स के साथ आने लगा तो उसकी ड्रामेटिक टेक्निक ही बदल गई थी। चॉइस ऑफ वर्ड्स कॉलोकियल हो गया था,
लोकल लैंग्वेज यूज की जाती थी। और साथ साथ एक क्वेश्चन मैं स्किप कर गई हूँ, डॉल हाउस का एज अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इस नॉवल को जरूर से जरूर कर जाना, क्योंकि पोएटिक ड्रामा था, रेस्टोरेशन कॉमेडी थी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी इस टाइम लिख रहे थे। तो हेनरी इब्सन का जो ये टाइम फ्रेम है ड्रामा को एज ए जॉनरा भी आगे लेकर के आने के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो यू शुड हैव such form of information in your very mind. The next question is, how does Congreve use of wit and marriage to critique societal norms and gender roles in restoration society? MDU, KU, नेट, जहां भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, नेट में ओवर एंड ओवर 4 टाइम्स कॉनग्रीव के द वे ऑफ द वर्ल्ड में से क्वेश्चन पूछा गया है और आज भी पूछा जाता है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स एज अ लिटरेरी टर्म, एम एच अब्राहम्स की बुक उठा लीजिए। जिन जिन लिटरेरी टर्म्स का नेम मैं ओवर एंड ओवर ले रही हूँ, उनका एक शॉर्ट 3 to 4 to 5 लाइन्स का एक ब्यूटिफुल सा नोट मग अप कर लीजिए, क्योंकि कॉमेडी ऑफ मैनर्स की कुछ फीचर्स होते हैं, स्कैंडल मॉन्गरिंग होती है, इमोरल सोसाइटी होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर्स होते हैं, और किस तरीके से डिस्गाइज का यूज किया जाता है। तो वो सब चीजें हमारी कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जबकि कौन से किंग के टाइम पर, किंग चार्ल्स के टाइम पर ये इस टाइप की रेस्टोरेशन कॉमेडी, रेस्टोरेशन सटायर प्रेवलेंट था। तो ये किसको सटायर करती है? वेज ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक पीपल। उस वक्त की सोसाइटी कितनी इमोरल थी, इवन अ स्लाइटेस्ट ऑफ अ स्कैंडल वाज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। सो यू शुड हैव दिस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एज यू राइट योर आंसर। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे ऑफ द वर्ल्ड आंखें बंद करके मान लीजिए, जरूर से जरूर मिलेगा। So next is MDU में prescribed है हमारा Dr. Faustus. What is Marlowe's message about the pursuit of knowledge and power in Dr. Faustus? Is ambition portrayed as a virtue or a vice? अब यहाँ पर Dr. Faustus को बहुत ज़्यादा pursuit है. He wants to pursue what he wants to pursue. He wants to pursue knowledge. He has this greed of knowledge and power. लेकिन knowledge की greed ही उन्हें necromancy की ओर लेकर के जाती है, और जब नेक्रोमेंसी से उन्हें पार मिलती है तो ग्रीड और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर दिस इज द मेन थेमेटिक कंसर्न ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ये एक ट्रेजेडी है। डॉक्टर फॉस्टर्स हीरो होकर भी एक नॉन हीरोइक कैरेक्टर है। सो ग्रीड ऑफ एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो चाहे वो नॉलेज हो या पावर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप कहोगे कि नेहा मैम आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों करा रही हैं? बिकॉज टाइम इज रियली वेरी लेस। 10 डेज के अराउंड हमारे पास टाइम रह गया है, और ये टाइम, क्योंकि आज है 6 अगस्त, तो ये टाइम हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 डेज का टाइम ही रह गया है। इन 10 डेज में, एक दिन में इन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत कुछ सॉर्ट एंड सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इज, एनालाइज द थीम ऑफ द अमेरिकन ड्रीम इन डेथ ऑफ सेल्समैन। एमडीयू में प्रिस्क्राइब्ड है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। यहाँ पर क्या है? शैटरिंग ऑफ अमेरिकन ड्रीम है। अमेरिकन ड्रीम कैसे विली लोमैन का शैटर हो जाता है, इवन आफ्टर हैविंग सन्स who are expected to have a brighter future, but they are also feeling this recession in their life, in their way of life and everything. That Willy Loman, who is a salesman, he dies. He had been at such an age, he is now very aged and not in a position to work that hard. This is also very important text. हाँ जी, नॉवल की बात करूँ तो हकलबेरी फिन भी जरूर से जरूर पढ़ करके जाइएगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पोर्शिया तो हमारी इंपॉर्टेंट है ही, हमारे ये भी बीए में प्रिस्क्राइब्ड रहती हैं। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से पोर्शिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने कहा है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? सटायर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यूटिलिटेरियनिज्म, मैजिक रियलिज्म। इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन चीजों को जरूर से जरूर आप लोगों ने पढ़ करके जाना है। कैनोनिकल टेक्स्ट थे ये सारे,
मैंने रिवाइज करा दिए हैं, एक बार क्विक बर्ड आई व्यू दे दिया है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, मॉक टेस्ट की तरह इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और गिवन टाइम फ्रेम में कर लीजिए कि हमें 10 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर मिला है और हमें इस टाइम फ्रेम में इसको अटेम्प्ट करना है. लेट इट you people should take it as a challenge and I challenge you, लिख करके दिखाइए और मुझे भेज भी सकते हैं मेरे गिवन नंबर पर, मैं उसे चेक भी करूंगी. और जी हाँ, हम कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिनका लिंक ओवर एंड ओवर हम प्रोवाइड करते रहते हैं अपनी वीडियो में. अगर आप लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश इन इंडिया और उसके बाद हमारा कल्चरल स्टडीज और जो भी हमारी यूनिट्स हैं, अगर आप उनके नोट्स अवेल करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर वन शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट मीन्स एक ही बारी में सारी यूनिट कवर हो जाएगी. हमारे पास लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स के नोट्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश इन इंडिया के हैं, कल्चरल स्टडीज के हैं, और ये सब नोट्स जो हैं वो आप हमसे अवेल कर सकते हैं एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस. दे आर नॉट चैट जीपीटी कॉपीड. अब क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अब भी कुछ हो सकता है. अगर इन यूनिट्स को टेकअप नहीं किया है, एक ही शॉर्ट में ये यूनिट कंप्लीट हो सकती है. आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं इन नोट्स के लिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप ऑब्जेक्टिव के लिए ये चीज़ें पढ़ चुके हैं. अब आपको अगर कुछ रिटर्न मिल जाता है तो वेल एंड गुड, उसे बस मग अप करना है. अंडरस्टैंडिंग तो ऑलरेडी डेवलप आप कर चुके हैं. द नोट्स आर ओरिजिनल. वेस्टलैंड की कॉपी के लिए बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, तो जी हाँ, वेस्टलैंड की कॉपी भी एक नॉमिनल प्राइस पर हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि वेस्टलैंड वोकैबुलरी इज वन ऑफ आवर वेरी फेमस वीडियोज रनिंग राइट नाउ. So with that, I come to the end of this video. Please do let me know how can I help you more in much better ways. Thank you.